Hello students, welcome to the class today. Um, Revision work is going on, especially for chapter 1, French Revolution. I think by now many concepts might have been clear to you. Every class, I start my class with a brief recapitulation of the previous topics that we have done. Got it? So the topics that we have done till now, we have touched each and every point that is important. हर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है. नाउ आई हैव डिस्कस दीज पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. 3 marks questions, 4 marks questions, 5 marks questions. So when we are talking about these types of question format, when we talk about these kinds of questions that will be coming from the board point of view, it is definitely going to help you. Got it, children? Please understand. तो इसको अच्छे से समझने के लिए, to understand it in a very proper manner, go in detail. या फिर जो points हमने discuss किए हैं, the points that we have discussed, just go through that in step by step. तो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू गो थ्रू द होल टॉपिक. यू कैन जस्ट गो थ्रू सर्टेन important things that are mentioned in the topic. One of the most revolutionary social reforms that had happened. अभी तक जो हमने बात किया, I will again give you a brief recap of the first topic, the second topic, third and fourth. पहले टॉपिक में हमने क्या किया? First topic, we talked about the background of the French Revolution. Revolution होता है, on such a large scale revolutions happen, तो it happened because of some reasons. उसमें क्या था? First, second, third state, the taxes, the subsistence crisis. मतलब मैं आपको just overview बता रही हूँ टॉपिक्स का. Got it? The subsistence crisis and then the role played by the philosophers. सेकेंड टॉपिक में हमने क्या बात की? सेकेंड टॉपिक में वी टॉक्ड अबाउट द डे रेवोल्यूशन हैड हैपेंड एंड द चेंजेस फर्दर ऑन. उसके आगे के जो चेंजेस हुए उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. वी डिस्कस्ड अबाउट इट इन डिटेल. गॉट इट चिल्ड्रन? ये जो चीजें हमने की, दीज थिंग्स दैट वी हैव डन, इसमें हमको रेवोल्यूशन के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया. सेकेंड टॉपिक में हमने क्या बात की थी? सेकेंड टॉपिक वी टॉक्ड अबाउट द ट्रीटी ऑफ द वर्सेल्स, हाउ पीपल हैड गॉन टू वर्सेल्स, व्हाट वाज देयर वे ऑफ इंटरैक्शन विद द पीपल, किस तरह से उन्होंने रेवोल्यूशन को कैरी फॉरवर्ड किया. द टेनिस कोर्ट ओथ, some of the important role that was played by Mirabeau and Agassiz. Who were these people and what was the role played by them? We discussed about it. ठीक है? टेनिस कोर्ट में जाके ओथ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद मोनार्की was replaced by constitutional democracy, constitutional republic. A republic that would be following the constitution. लुई 16 ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी. क्या गलती की? Yes, he took the things very lightly. उनको लगा कि हाँ अभी लोग थोड़ा सा नाराज हैं, सही हो जाएंगे या होता है. ये उनकी सबसे भारी मिस्टेक थी. वहां से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ. He started making secret arrangements with the neighboring rulers. तो लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ा. पीपल वेर वेरी एंग्री एंड देन दे ओवरथ्रू द एम्परर इन अ वेरी ब्रूटल मैनर. बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने एम्परर का खात्मा कर दिया. ओके, एंड द मेजर रोल वॉज प्लेड बाय जेकबिन क्लब. क्लब्स वेर एस्टैब्लिश्ड एंड दीज क्लब्स वेर इंस्पायरिंग द पीपल, taking the country towards independence
and making the people aware about the nearby situations. ये सारी चीजें लोग कर रहे थे. They were doing it, practicing it in a very different manner. तो यहाँ से we see that Jacobin Club and the government that was established that took France to a next level, that took France to a phase where independence was there. लेकिन वही बात हो गई that the leader of the Jacobin Club, Maximilian Robespierre, he got the power, he misused his power. The emperor जो होते हैं, रूलर्स जो होते हैं, उनका राजपाट वहीं खत्म हो जाता है जहां उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज करना शुरू किया. Where they start misusing their power, वहीं से चीजें गलत होनी शुरू हो जाती हैं. ओके, now he was also overthrown. There was a rule of directory. डायरेक्टर्स को बनाया गया, लेकिन डायरेक्टर्स ऑल्सो कुड नॉट लुक आफ्टर फ्रांस प्रॉपरली. बहुत ज्यादा टर्मोइल था. ठीक है, इनके बीच में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी एंड ऑल दैट. इसी का फायदा उठाकर द नेक्स्ट पर्सन हु केम अप एज द रूलर ऑफ फ्रांस, हु केम अप टू बी द फर्स्ट डिक्टेटर एवर, वाज नेपोलियन बोनापार्ट. यहाँ पे हमने थर्ड टॉपिक खत्म किया था एंड फोर्थ टॉपिक में वी टॉक्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रूल ऑफ एनी कंट्री एंड दैट वाज द विमेन. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन एवरी कंट्री इज विमेन. हाफ नहीं भी होंगे तो भी तो 40-50%, 40%, 30% तो विमेन होंगे ही होंगे. एंड द treatment that they faced in France and the problems that they faced in France, इसके बाद क्या क्या problems face किया, how did they come out of it, we had already had a lot of discussion on this. ठीक है, इसके बाद one next topic that had a lot of impact in the French history of nationalism, that is the abolition of slavery. Most revolutionary reform. Got it? We will understand it as the most revolutionary reform. सबसे बड़ा चेंज हुआ इसकी वजह से. ओके, एंड दिस वाज द सोशल रिफॉर्म ड्यूरिंग द जेकबिन regime. Most revolutionary social reform of the Jacobin regime, it was the abolition of slavery in the French colonies. Most revolutionary reform in, क्योंकि देखो जेकबिन्स जिस समय मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर have taken the power in his own hands, कुछ चीजें उन्होंने अच्छी भी की. सारी चीजें खराब नहीं करते हैं, लेकिन क्या हो गया कि जो खराब किया ना वो थोड़ा ज्यादा कर दिया, अच्छा थोड़ा सा कम किया. तो दैट्स व्हाई ही हैज टू गो थ्रू अ कंप्लीट डाउनफॉल. उनको अपना पूरा डाउनफॉल देखना पड़ा. एंड इन जेकबिन regime, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. जितने भी फ्रेंच कॉलोनीज थी, फ्रेंच खाली फ्रांस में नहीं थे, लाइक द ब्रिटिश. ब्रिटिश देखो इंडिया में भी आए. द ब्रिटिशर्स हैव मेड देयर कॉलोनी इन इंडिया ऑल्सो. तो दे डिड नॉट हैड देयर कॉलोनी और देयर सेटअप ओनली इन फ्रांस. नेबरिंग कंट्रीज में भी वो छाए हुए थे. गॉट इट? जैसे कि दे हैड द फ्रेंच कॉलोनीज. Abolition of slavery in French colonies. मतलब क्या होता था ना, छोटी छोटी कंट्रीज को या छोटे छोटे प्लेसेस को जाके ये अपने कब्जे में कर लेते थे. तो डोमिनेशन और कैप्चर ऑफ अ पावरफुल कंट्री ऑन अ वीकर कंट्री. एक पावरफुल कंट्री जाके जब एक वीकर कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती है, then that
thing that is called as a colony. ठीक है, इन फ्रेंच कॉलोनी. और फ्रेंच ने अपनी कॉलोनी कहाँ कहाँ बनाई थी? बहुत जगह पे. They have made their settlements, they have made their colonies in many places. ठीक है, places like Caribbean, okay, Martinique. Caribbean is an island. ठीक है, कैरिबिया इज अ प्लेस विच इज एन आइलैंड कंट्री एंड इसमें बहुत सारी जगह पे फ्रेंच ने कब्जा किया हुआ था. मेनी प्लेसेस फ्रेंच पीपल वेयर डोमिनेटिंग. ठीक है, कौन सी वो जगह थी? मार्टिनिक, ओके, गुइदेलॉप, मार्टिनिक, Guadeloupe, okay, and San Domingo. San Domingo. These were the islands that were captured by French, and इन islands में पता है क्या होता था? Big form में trade, slave trade was happening. Trade of slave. गुलामों की ट्रेडिंग की जाती थी. ठीक है, मार्टिनिक, ग्वादेलोप, सैन डोमिंगो, इंपॉर्टेंट सप्लाई बिकॉज इस कॉलोनीज. अब जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी कॉलोनी बनाई, क्या करते थे वो? ऑल द रॉ मटेरियल दे यूज्ड टू टेक फ्रॉम द कॉलोनी. सारा सामान यहाँ से ले जाते थे, ट्रेड करते थे, यहाँ के लोगों को डोमिनेट करते थे, लोगों के साथ स्लेव के जैसा बिहेव करते थे. दैट इज द way the the Europeans used to rule on their colonies, and important commodities were supplied from these countries. यहाँ से सारी important commodities वो लेके जाते थे, जैसे tobacco, indigo, sugar, coffee. They traded in tobacco, indigo, ठीक है, शुगर, कॉफी. जिस भी कंट्रीज से उनको जो भी समाज, भाई उनकी कॉलोनी है ना, दे हैव कैप्चर्ड दीज कंट्रीज, सो वॉट एवर दे वांट दे कैन इजीली अवेल फ्रॉम दीज कंट्रीज. लेकिन यूरोपियंस क्या था? यूरोपियंस दे वांटेड टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस. दूर जगह पे जाके जब वो काम करते थे, अभी कहाँ फ्रांस है एंड कहाँ कैरिबिया है? कैरिबियन आइलैंड्स, वेयर आर द कैरिबियन आइलैंड्स? आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो फ्रॉम यू. मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, वेयर आर दीज कैरिबियन आइलैंड्स? फ्रांस इज इन यूरोप बट कैरिबियन आइलैंड्स आर नॉट इन यूरोप. यस, कहां पे है आप मुझे बताओगे? प्लीज डिस्कस इट विथ मी इन द नेक्स्ट क्लास. बिकॉज द फ्रेंच पीपल गोइंग एंड ट्रेडिंग इन सम अदर कंट्री, वहां से अगर सामान लेके आ रहे हैं, मतलब भाई हम दूर कहीं से जाके कुछ सामान लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स कि उस जगह पे हमको वो सामान नहीं मिल रहा है. वी आर नॉट गेटिंग दोज गुड्स इन दोज प्लेसेस. That's why we are going at far off places. Distant place, unfamiliar place पे जाके अगर बिजनेस कर रहे हैं, मतलब हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास प्लांटेशन नहीं है. प्लांटेशन, plantations, you know it very well. Plantations are those places where one kind of crop is grown. Big places, दूर दूर तक देखोगे कॉफी, टी, उसके बीच में आपको आम और अमरूद नहीं नजर आएगा. Those are plantations. So this was met by, there was in this area something that was happening which you need to know is triangular slave trade. Got it?
Trade of slaves happening from three sides. Triangular slave trade. Okay, and कहाँ पे, किस किस जगह पे ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो रहा था? ट्रायंगुलर में तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल. ओके, एंड इट वाज बिटवीन यूरोप. स्लेव ट्रेड हो रहा था, कहां से कहां जा रहा था, कहां से कहां जा रहा था? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका. और ट्रेड में पता है क्या होता है? मतलब देयर इज सप्लाई, देयर इज डिमांड, मतलब प्रॉपर ट्रेड यूज टू हैपन. यूरोप से somebody is calling or somebody is asking in America, अरे भाई I need 100-200 slaves. तो ये अमेरिका वाले कहेंगे हाँ हाँ there are many, we can provide you, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगेगा. You know, that kind of a dealing was there for human being. Human being को मटेरियल की तरह ट्रीट किया जा रहा है. Imagine what a plight. कितनी बुरी हालत है कि ह्यूमन बीइंग को सामान बना के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं. And when did it all start? This triangular slave trade, it started in 17th century. Please understand. 17th century it has started. पूरी तरह से it was spread all over. फ्रेंच मर्चेंट्स, यहाँ से यूरोप से फ्रेंच मर्चेंट्स निकलते थे एंड बोर्डियोई और नैंतीज है, दीज आर दी, जैसे हमारे यहाँ पे चेन्नई है, मुंबई है, द सी पोर्ट एरियाज, जहाँ पे कि समुद्र के किनारे वाली जो सिटीज हैं, यहाँ से अफ्रीका जाते थे. ओके, वहां से अफ्रीका से जाके स्लेव्स खरीद के लाते थे. लोकल के वहां के जो लोग थे, फ्रॉम द लोकल चीफटेन्स दे यूज टू गेट द स्लेव्स ब्रांडेड एंड शैकल्ड. ब्रांड किया जाता था, यस, इनको दाग दिया जाता था. जैसे मोहर है, सम कंपनीज देयर विच इज डूइंग ट्रेडिंग इन स्लेव में ट्रेड कर रही है. वो लिया, वो मोहर जो होती है उसको गर्म करके उनके उस पे स्किन पे लगा दिया, तो वो तो आपका निशान बन जाएगा ना. आई एम ब्रांडेड विद द स्लेव ट्रेड कंपनी ऑफ टॉमी एंड एंड्रयू. I'm just citing an imaginary name. So they are branding these slaves, shackled, बेड़ियों में जकड़े हुए, branded and shackled. ठीक है, slaves क्या होता था? सपोज शिप इज देयर, ठीक है, पानी का एक जहाज है, उसमें सिर्फ 200 ही लोगों को भरा जा सकता था. Only 200 people can travel, but then they used to keep 50 extra slaves. और ले चलते हैं वहां पे, हो सकता है और लोगों को स्लेव्स की जरूरत हो. 200 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 50 और स्लेव्स, लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह ब्रांड करके बेड़ियों में जकड़ के. मतलब इसको सोच के ही मुझे इतना बुरा लग रहा है. When I'm thinking about it, I'm feeling so bad. But my dear children, this was happening. This was the reality. Okay? 3-month long voyage. और 3 महीने तक यहां से क्या होता था? From Europe, from Africa to Europe. 3 months long journey. Please understand. And branded, shackled, the slaves were tightly packed into the ships. Slaves were tightly packed in ships. From Africa. ठीक है, 3 months long voyage, अटलांटिक से लेके कैरिबियन तक. ठीक है, फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप. 3 months long journey.
Got it? They were sold to plantation owners. Plantation, कॉफी के प्लांटेशन है ना, हम कॉफी की खेती कर रहे हैं, कॉफी की खेतों पे काम करने के लिए, प्लांटेशन पे काम करने के लिए 200 स्लेव्स मंगाए हैं हमने। तो उनको रखना, खाना पीना सब चीज का इंतजाम करना है, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी मच नीडेड। पैसा तो चाहिए, कॉफी की खेती तो करनी है। एंड दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। 3 months long journey and slaves were sold to plantation owners. टी प्लांटेशंस, कॉफी प्लांटेशन, गॉट इट? इन सारे प्लांटेशंस में ले जाके इनको बेच दिया जाता था। स्लेव्स है, स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन वाज टू दी हाईएस्ट लेवल। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। यूरोपियन मार्केट्स में बहुत स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन इतना हो रहा था, एंड यूरोप के मार्केट में टी, शुगर, कॉफी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही थी। टी, शुगर, कॉफी, इंडिगो, these were highly in demand. Good, got it? Port cities were there. In these port cities like Bordeaux, Nantes, owed their economic prosperity to the slave trade. एक एक slaves का इतना हाई प्राइस लगता था, but the people had lot of money. हाँ, जितना भी पैसे कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। Just bring slaves for us, हमारे लिए slaves लेके आओ। Okay. So Bordeaux, please remember the names of Bordeaux and Nantes. You need to remember. Bordeaux and Nantes. These were the two cities which had a flourishing slave trade. पोर्ट सिटीज थे ये, फ्रांस के पोर्ट सिटीज थे, एंड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वेयर प्रॉस्पर मीन्स वेरी रिच सिटीज, काफी पैसा था यहाँ के लोगों के पास। एंड हाउ डिड दे गेट दिस मनी? इट वॉज थ्रू स्लेव ट्रेड। गॉट इट? Okay, so you can understand on what a large scale the slave trade was happening throughout 18th century. पूरा 18th century में there was little criticism of slavery in France, and National Assembly had long debates कि human being का trade कैसे कर सकते हैं। एंड देखो कितना वो है, as tightly packed like animals, they are put into the ship, and these ships are bringing these slaves from one country to the other country in 3 months. Try to understand the plight of these slaves. भागना भी चाहेंगे तो नहीं भाग पाएंगे। Can you understand? If they want to run away, they cannot run away also. So throughout 18th century there was criticism of slave trade. Got it? फ्रांस में बहुत ज्यादा नेशनल असेंबली दे हैड लॉन्ग डिबेट्स कि वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, क्योंकि फ्रेंच वे आर नॉट ओनली इन फ्रांस ना, दे वर देयर इन द कॉलोनीज ऑल्सो वर्किंग एज स्लेव्स। तो ये जो राइट्स की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, रिमेंबर। तो इट शुड बी ओनली फॉर द पीपल हु आर देयर इन फ्रांस और फॉर द पीपल हु आर देयर आउटसाइड ऑल्सो। लेकिन नो, दे डिड नॉट पास एनी लॉज फॉर द स्लेव्स, क्योंकि उनको लगा कि बिजनेसमैन विल अपोज इट। पैसा जहां से आ रहा है, हु विल अपोज इट? कोक, पेप्सी, थम्स अप सब बिक ही रहा है ना।
We know it is zahar, बेच रहे हैं. We know that liquor is zahar, बेच रहे हैं. This is what I want to say. Some places में human being की life के ऊपर हम पैसों को रखते हैं. We keep money above the lives of human being, which is wrong. यहीं से चीजें गलत होती हैं. Okay, they did not make any law. They thought there would be opposition by the fearing. No laws were passed. Fearing opposition from businessmen. ये जो बिजनेस लोग हैं ना वो कहेंगे कि भाई हम क्यों लॉस सहे. They are making a lot of money from the slave trade. So in the convention that was finally, which was made in 1794, ठीक है, convention of 1794, first time it was decided that free all slaves in the French overseas possessions. Okay, decided to free the slaves. जितना भी फ्रांस में जितने भी स्लेव्स हैं उन सबको फ्री कर दिया जाएगा. Thank God somebody talked about and somebody thought about human life and humanity. So this turned out to be a short-term measure. कुछ दिन के लिए तो ये था. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Napoleon ने आके वापस से slavery reintroduce कर दी. Napoleon reintroduced slavery. Remember the directory rule in France 1794. When did Napoleon come? Napoleon came in 1804. So 10 years तक Napoleon reintroduced slavery. Got it? So plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes. Negroes Africa से लेके आते थे of their economic interest. Slavery was finally abolished. सबसे काफी दिन तक फिर slavery चली, but finally it was abolished in 1848. Slavery was abolished in 1848. ठीक है? All the places, all the colonies. Slavery से related कुछ और information है. I just wanted to show you that. I'll show it to you in the book only. So students, just now we have completed this topic, the abolition of slavery. 2-3 points that is there important from the book. First thing is the topic in itself is important. पहला तो आप ये समझो. And then the countries of the Caribbean, the colonies in the Caribbean. Caribbean कहाँ पे है? Where is the Caribbean island? That you all will be telling me. I know you all can definitely give me information about it. And from all these colonies, इनको क्या मिल रहा था? What were the French getting from these colonies? They were getting tobacco, indigo, sugar, coffee. So Europeans, they wanted to go and work in distant and unfamiliar lands. Shortage of labor was there for the plantations. तो वहाँ दूर दूर से slaves को पकड़ के लाते थे. I just wanted to show you this poster. Look at this poster. ठीक है? Can you see the slaves? Can you see of the slaves? How they are being treated? And look at the information, the emancipation of slaves. ठीक है? Emancipation. ये जो poster है, this is the print. It is talking about the tricolor banner. On top carries the slogan, the rights of man. ये देखो. यहाँ पे they are talking about the rights of slave.
स्लेव्स के बारे में ये बातें कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लोथ्स टू वियर। ये देखो, शी इज़ ब्रिंगिंग क्लोथ्स कि हमारे जैसा बनो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, कि अनसिविलाइज्ड पीपल नीड्स टू बी सिविलाइज्ड। दे आर ट्राइंग टू डू दैट। पता नहीं सबको अनसिविलाइज्ड क्यों समझते थे। नाउ जस्ट सी हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ इमेंसिपेशन इज हियर। इमेंसिपेशन का एक्सप्लेनेशन फिर खोजोगे, इमेंसिपेशन द एक्ट ऑफ फ्रीइंग। एंड नीग्रो इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर द पीपल फ्रॉम अफ्रीका। जो बिल्कुल काले होते हैं, उनका रहने सहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज द नीग्रोस। गॉट इट चिल्ड्रन? ये टॉपिक खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।